My dear students of BTech second year, I am Dr. Ravind Parsai, Associate Professor of Mathematics in Engineering Science Humanity Department at Chamil Devi Group of Institution Indore. I wish to teach you through Lecture 7 on this chapter or Module 2, Solution of Simultaneous Linear Algebraic Equation by Relaxation Method with example. This is the last method on this chapter here. So first of all, we understand this relaxation method. It is very interesting method. So this method was originally developed by R.V. Southwell in 1935 for application to structural engineering design or problems. One of the subject in structural engineering in your problems. So let us consider the system of equations. A1 of x in the same pattern as all unknown terms left side and known values on the right hand side, and you are having also the coefficient to be large here. So we define the residual in this method. We define the residual as Rx, Ry and Rz by the relations. Rx is to be obtained by shifting all these terms on the right hand side here. D1 of a1 minus a1 of x minus b1 of y minus c1 of z. Then from the second part of this equation you write ry. Then from third one you will find r of z. To start with, we assume that x equal to 0, y equal to 0, z equal to 0 and calculate the initial residuals. Then the residuals are reduced step by step by giving increments to the variables. For this purpose we construct the following operation table. So in this way you construct the operation tables here by writing delta x, delta y, delta z as the arguments here. Delta of Rx corresponding this formulas to be having coefficients. Then delta of R of y, delta of R of z. So we note from the equation number 2 that if x is increased by 1 keeping y z constant, Rx, Ry and Rz decrease by a1, a2, a3 respectively. So this is shown in the above table along with the effect on the residuals when y and z are given unit increment. The table is transpose of the coefficient metric. So at each step the numerically largest residual is reduced to the almost 0. To reduce a particular residual, the value of the corresponding variable is sent. When all the residuals have been reduced to almost 0, the increments in x, y and z are added separately to give the desired solution. So let me see an observation here. The iterative method, relaxation method can be applied successfully only if the leading diagonal elements of the coefficient matrix dominate the other coefficients in the corresponding row. That is, if system in which the coefficient of the leading diagonal are large as compared to others. We now describe such method by an example. Solve by relaxation method. Pattern is starting is as all unknown terms left side, known values on the right hand side. So since the coefficient of leading diagonal are large as compared to others, we define the residuals correspondingly by denote by Rx, Ry and Rz. So फर्स्ट पार्ट से हमने ये किया, इसको रीअरेंज किया इक्वेशन को. सेकंड से हमने ये कैलकुलेट किया आर वाई. थर्ड से हमने आर जेड कैलकुलेट किया. और फिर इसके बाद हमने ऑपरेशन टेबल बना दी. जो कोफिशिएंट की वैल्यू थी वो यहाँ पर हमने इस तरह से पैटर्न में मेंशन कर दी. फर्स्ट कॉलम में डेल्टा ऑफ आर एक्स की वैल्यू, इसको डेल्टा ऑफ आर एक्स से डिनोट कर दिया, इसको डेल्टा ऑफ आर वाई से डिनोट कर दिया और उसको डेल्टा ऑफ आर जेड से डिनोट कर दिया. Now we prepare the relaxation table is the most typical and important methods or preparing this case. Once you calculate the relaxation table, then there is no problem to find a final solution that we will explain in the next slide. Step by step you can understand. First you are having the column of increment, second you are having the column of residual as you already obtained, third you are having the column of residual corresponding to variable y, third one is the residual formula for the
third unknown is z. And now initially you have to take x y z equal to 0, or we can say that delta x delta y delta z equal to 0. Please substitute this x y z equal to 0. So in this equation you will get the reciprocal corresponding to this 50, and from this x y z 0 रखेंगे तो 18, from this is 19. Now you will see that all these three residual, which one is numerically largest. न्यूमरिकली का मतलब होता है केवल हमें मैग्नीट्यूड देखना है, साइन को ध्यान नहीं देना है, तो जो मैग्नीट्यूड में ग्रेटेस्ट दिख रहा है उसको हमें लेना है। तो ये हमारा 50। अब चूंकि आपके पास ये जो 50 है वो x के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो इसमें इक्वेशन जो आपको दी है उसमें x का जो कोएफिशिएंट है 9, तो इसलिए अपन को इससे डिवाइड करना होगा। तो ये वैल्यू हमें डेल्टा ऑफ x की वैल्यू मिलेगी, दैट इज़ 5 है। अब उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर इस इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे। सो 5 वैल्यू रखेंगे डेल्टा x की जगह, हम लोग मीन्स x की जगह ये यूज़ करेंगे, और बाकी जो वैल्यूज़ हमने ऑब्टेन करी है वो वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये हमको 5 मिलेगा, फिर हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग 13 मिलेगा, फिर हमको 29 मिलेगा। फिर आप उसके बाद फिर से हम लोग ये मेथड्स को सक्सेसफुली यूज़ करते जाएंगे जब तक हमारे पास जो वैल्यू है वेरिएबल्स की, जो भी हमें स्मॉल इंक्रीमेंट है वो 0 के नियर नहीं आ जाता, तब तक हम इस मेथड को रिपीट करते रहेंगे। तो हमारे अगले स्टेप में हम एक बार फिर से मेथड को रिपीट कर देते हैं। अब हमारे पास इन तीनों में जो डेल्टा की जो न्यूमेरिकली लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो है इन तीनों में 29 है, और 29 में जो है वो जेड के कॉरस्पॉन्डिंग है, दैट इज़ डेल्टा जेड है, इसलिए अपन इसको डेल्टा जेड मानते हैं। तो चूंकि इसमें जेड का जो कोएफिशिएंट है आपका जो इक्वेशन दिए वो क्या है, वो 7 है। 7 है आपका जेड के कॉरस्पॉन्डिंग जो रेसिडुअल आपने लिखा है वो 7 है, इसलिए अपन उसको यूज़ करेंगे, हम साइन को यूज़ नहीं करेंगे, हमें केवल मैग्नीट्यूड को यूज़ करना है। तो 29/7 इक्वल टू 4, तो ये आपका हो गया। फिर आप लोग ये वैल्यू इसमें आप इक्वेशन में रख देते हैं, तो सॉल्व करने के बाद आपको ये वैल्यू मिल जाती है 1, 25, 1। फिर इसके बाद आप लोग यहाँ पर फिर से हम सिलेक्शन करेंगे न्यूमेरिकली लार्जेस्ट वैल्यू का, जो कि 25 है। ये 25 जो है y के कॉरस्पॉन्डिंग है, इसलिए यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 5 है, तो इसलिए अपन को इसको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब हम जो यहाँ पर इस इक्वेशन के y की जो वैल्यू यूज़ करेंगे वो 5 यूज़ करेंगे, बाकी हमने x और z की वैल्यू जो हमने हमारे पास प्रीवियसली आई है वो हम लोग यूज़ करेंगे, दैट इज़ डेल्टा x डेल्टा z। इन दोनों जो वैल्यूज़ हैं इसको आप लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे x की जगह और z की जगह, और फिर इसके बाद y की जगह। तो आपके पास यहाँ पर डेल्टा x 0 है, पहला यहाँ पर आपका ये है, तो अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान रखिए बेटे, ये 50 - 9 इंटू एक्स की वैल्यू कौन सी यूज़ करेंगे, ये 5 यूज़ करेंगे, y की जगह कौन सी वैल्यू यूज़ करेंगे, ये 5 यूज़ करेंगे, और z की जगह हमें वैल्यू कौन सी यूज़ करना है 4 रखेंगे, और सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये 11 आएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर हम लोग इसी तरह से इससे हम इसमें वैल्यू रखेंगे x y z, मतलब डेल्टा x डेल्टा y एंड डेल्टा z की ये वैल्यू जो लिखी है उसको यहाँ पर यूज़ करके सॉल्व करेंगे, तो आपके पास ये 18 - 18 से 0 हो जाएगा। फिर इसी तरह से अपन रेसिड्यू z के रेसिडुअल करस्पॉन्डिंग निकालेंगे, तो यहाँ पर 19 + 2 इंटू x मतलब डेल्टा x की वैल्यू, डेल्टा y की वैल्यू, डेल्टा z की वैल्यू यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारे सोल्यूशन में मॉडिफिकेशन होता जाएगा। अभी आपने देखा इन तीनों रेसिडुअल में से एक रेसिडुअल 0 की तरफ आगे बढ़ गया है, तो इसलिए हमें आगे बढ़ना होगा। और अब यहाँ पर आपके सामने ये लॉजेस हैं, तो इसमें आपके पास सिमिलरली इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपके पास 11 और इन तीनों में 11 बड़ा है, सो यहाँ पर आपका x जो है x के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग यहाँ पर डिवाइड करेंगे, इसको 9 से डिवाइड करेंगे, तो जो वैल्यू आ रही है आपकी, क्योंकि 9 दूना 18 होते हैं, तो फर्स्ट टाइम करेंगे तो डेल्टा x मिल जाएगा। तो 11/9 करेंगे तो अपन को 1 लेना है, राउंड ऑफ वैल्यू लेना है, तो इसलिए 1 ले ली हमने। फिर इसी तरह से अब आपके पास x की जो वैल्यू होगी यहाँ पर रेसिडुअल x के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए आपके पास 2 वैल्यू होगी, एक 1 है और एक 5 है, तो इसलिए आप दोनों का जोड़ेंगे, तो यहाँ पर x की जगह 6 रखेंगे, तो 50 - 9 इंटू 6 + 2 इंटू y, मतलब आपका ये डेल्टा y है तो 5 है,
जेड में भी अभी कुछ एडिशन नहीं हुआ है तो 4 और 4 रखेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये 2 मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पर ये वैल्यू मिलेगी, इसी तरह से यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो -7 मिलेगा। अब इसके बाद फिर से वही चीज़ करेंगे, इन तीनों में न्यूमेरिकली लार्जेस्ट 7 है तो 7 की जो वैल्यू है आपके पास माइनस में आ रही है तो इसको आप लोग यहाँ पर डिवाइड करेंगे। जेड की वैल्यू है, जेड में 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, -7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो -1 मिलेगा। फिर इसी तरह से हम लोग ये कैलकुलेट करते जाएंगे और इस प्रोसेस को अडॉप्ट करते जाएंगे जब तक हमारे पास ये तीनों रेसिडुअल 0 के नियर नहीं आते, तब तक हम ये प्रोसेस को करते रहते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आने के बाद अब हम रुक जाएंगे क्योंकि यहाँ पर तीनों रेसिडुअल 0 के करीब में 0 पे पहुँच गए हैं, इसलिए अब हम यहाँ पर रुक जाएंगे और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में अपना फाइनल सोल्यूशन लिखेंगे और कैलकुलेट करेंगे। So now we stop since the process of reducing residual is carried as all the residuals become 0 or negligible. So therefore the desired solution is obtained by adding up these increments. तो जितने हमने अभी तक इंक्रीमेंट्स फाइंड किए जिनको अपन ने डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड से डिनोट किया है, इन एक्स वाई जेड में सेपरेटली हम उनको एड ऑन करेंगे। दैट इज एक्स की वैल्यू निकालने के लिए जितनी भी डेल्टा की वैल्यू आपने लेफ्ट साइड में फर्स्ट कॉलम में निकाली है वो वहाँ पर एड ऑन करेंगे। 0 + 5, पहले 0 निकाली थी, फिर 5 निकाली थी बीच में, फिर 1 निकाली थी, फिर 0.13 लास्ट में निकाली थी, फिर इन सबका ऐड किया तो 6.13 आपका एक्स आ गया। इसी तरह से वाई आ जाएगा, इसी तरह से आपका जेड आ जाएगा। सो दिस इज अबाउट द मेथड विच वी कॉल्ड एज द रिलैक्सेशन मेथड. So similarly you will try the following example at your home as a practice question on this method here. The answer is x, y, z = 1. Please try this question as a practice problems at your home. Thank you very much.